Hey, hello, how are you students? I hope you all are good and doing well. So Khushbu ma'am is back with another video in the series ICSE Board Class 6 Biology Chapter 2 The Flower. So students, in the previous video we have already discussed about the structure of flower. What is the structure of flower and what are the main four parts of the flower, that is calyx, corolla, androecium and gynoecium. Let's do a quick revision of it. See, the calyx is the sepals, the green part. Okay, calyx, अगर calyx की बात करें, calyx क्या है बच्चों? It is also called sepal. The green portion just above the thalamus. Okay, so that is calyx. Calyx सारे sepals को जब हम एग्रीगेट कर लिए, मिला लिए, सारे sepals मिलके क्या बनाते हैं? calyx. Okay, it is the green part, it is the green portion just above the thalamus. Okay, so now calyx performs the process of photosynthesis because it is green and its function is to protect the flower in the bud condition. When the flower is in bud condition, जब flower कली के रूप में होता है, उस टाइम पे उस बड को, उस कली को कौन प्रोटेक्ट करता है? कैलिक्स प्रोटेक्ट करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कोरोला. ओके, कोरोला क्या है? कलरफुल एंड ब्राइट part, colorful and bright part of flower called petal. ओके, इसको क्या कहते हैं? पेटल. ओके, सारे पेटल्स मिलके क्या बनाते हैं? कोरोला. ओके, सो कोरोला इज बेसिकली द ब्राइट एंड कलरफुल पार्ट. ठीक है, ये क्या करता है? इसका काम होता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना. So basically the function of corolla is to attract the insects for the purpose of pollination, because insects helps in pollination. So in this way corolla, due to its bright color, attracts insects towards it. Now next is androecium. Androecium is the third rule. It forms the third rule of the flower. Okay, androecium consists of several units of stamens. Okay, several units of stamens are there, and stamen have two parts. Stamen have two parts. The uppermost, the bilobed structure, is anther, and on the lobe is attached to a stalk called filament. Okay, so androecium forms the third rule of the flower, that is stamens. Stamens are the single units. Okay, and each stamen have two parts, that is the uppermost bilobed structure called anther, and a stalk through which anther is connected, that is called filament. Okay, now this is the male reproductive part of the flower. Okay, this anther contains pollen grains inside it. That pollen grains contains male gametes inside it. Okay, so the male gamete present inside the pollen grains of anther is fuses and fertilizes the female gamete to produce new fruit, and to perform the process to produce new seeds and fruit, and it helps in reproduction. Okay, now next is gynoecium. Gynoecium is the forms the four rules of the flower. Okay, and that is pistil, or it is also called carpel. Pistil and carpel. Okay, what it is called? It is called pistil or carpel. Okay, this pistil or carpel
further consists of 3 parts. Okay, it have 3 parts. 3 parts होता है इसमें बच्चों. क्या क्या होता है? सबसे पहले ऊपर क्या होता है? स्टिग्मा. स्टिग्मा होता है. फिर क्या होता है? स्टाइल होता है. और फिर एकदम एंड में क्या होता है? ओवरी होता है. ठीक है. स्टिग्मा सबसे ऊपर का डिस्क जैसे शेप का स्ट्रक्चर होता है जो कि पॉलन ग्रेन को अपने ऊपर रिसीव करता है. स्टाइल क्या होता है? एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है. ठीक है. उसी स्टाइल के थ्रू क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स एंटर करता है ओवरी में. ठीक है. उसी स्टाइल के वाया इट एंटर्स, pollen grain enters into the ovary from stigma. Okay, the last portion is the ovary. Ovary is the swollen portion. ये क्या होता है बच्चों? swollen होता है. It is swollen, सूजा हुआ सा थोड़ा सा होता है नीचे. वो मैंने आपको फ्लावर में दिखाया भी था. ठीक है. अगर आप उसको अंदर और ओपन करके देखेंगे तो आपको उस फ्लावर में क्रीम कलर का स्वोलन सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा. डेट इज कॉल्ड ओवरी. इस ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स. ओके, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. और ये ओव्यूल्स के में क्या होता है? फीमेल गैमीट होता है. फीमेल गैमीट होता है. ठीक है. फीमेल गैमीट होता है. इसी तरह एंथर में क्या था बच्चों? एंथर में पॉलन ग्रेन्स होते हैं. ठीक है. एंथर में क्या होते हैं बच्चों? पॉलन ग्रेन्स होते हैं. और पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं. मेल गैमीट्स. ओके, या मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कह सकते हैं और फीमेल गैमिट्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कह सकते हैं. ओके, सो दिस इज द रिविजन ऑफ द प्रीवियस वीडियो, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. ठीक है. आई होप इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा. स्टिल इफ यू हैव having any doubts, so you can comment in the comment box and can clear your doubt. Now let's start the next topic, that is unisexual and bisexual flowers. Okay students, so unisexual and bisexual flowers की बात करें तो ये unisexual और bisexual क्या होता है बच्चों? सेक्सुअल से समझ में आ रहा है आपको? that something related to like gender or sexuality of any organism, right? तो उसी से unisexual और bisexual. uni means single and bi means double, right? uni means single and bi means double. Okay, so let's see what is unisexual and bisexual flowers. Flowers which contains only the male or female reproductive organ. ठीक है. कोई ऐसा फ्लावर जिसमें या तो मेल प्रेजेंट हो, या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो, या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो. ठीक है. ऐसी फ्लावर्स बच्चों जिसमें आइदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो. मतलब दोनों नहीं प्रेजेंट हो सकते. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि या तो एंड्रोशियम हो या तो गाइनोशियम हो. ठीक है. दोनों में से कोई एक. जैसे मैंने आपको हिबिस्कस दिखाया था, उसमें क्या था कि दोनों ही प्रेजेंट थे. एंड्रोशियम भी प्रेजेंट था, गाइनोशियम भी प्रेजेंट था. ठीक है. एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट थे. स्टेमन और पिस्टिल दोनों प्रेजेंट थे एक ही फ्लावर में. तो वो क्या है? वो यूनिसेक्सुअल नहीं फ्लावर है. ठीक है. वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है. अभी हम पढ़ेंगे. ठीक है. तो कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं बच्चों जिसमें या तो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है, या तो सिर्फ स्टेमन होता है, या तो सिर्फ पिस्टिल होता है. तो ऐसे फ्लावर्स को बच्चों यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं क्योंकि उसमें क्या है? सिंगल सेक्स प्रेजेंट है. सिंगल सेक्स प्रेजेंट है. ठीक है. या तो मेल प्रेजेंट है या तो फीमेल प्रेजेंट है. इसलिए उसको क्या कहते हैं बच्चों? यूनिसेक्सुअल फ्लावर. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर. यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करें बच्चों तो क्या है यूनिसेक्सुअल फ्लावर? यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करें बच्चों तो आप इतना याद रखिएगा, आइदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों में से
कोई एक ऑर्गन प्रेजेंट होगा, दोनों ऑर्गन्स एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट नहीं होते। सो दिस इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। दे ईदर हैव दी स्टेमेन्स और कार्पल्स इन अ फ्लावर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, या तो स्टेमेन प्रेजेंट होगा या तो कार्पल प्रेजेंट होगा। कुछ एग्जाम्पल्स इसके देख ले तो पपाया, गार्ड, मलबेरी, वाटरमेलन एग्जाम्पल्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल्स आप लर्न कर लीजिएगा बच्चों अच्छे से। पपाया, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन आपको कुछ ही याद रखने हैं, ठीक है। गार्ड, पपाया, गार्ड, वाटरमेलन, ठीक है, ETC, मलबेरी, ETC, ठीक है। तो कई सारे प्लांट्स होते हैं जिनके फ्लावर्स क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि उसमें कोई सिंगल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम सिंगल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है तो फिर कैसे उनमें रिप्रोडक्शन होता है। तो बच्चों मतलब कि फ्लावर्स तो कई सारे होते हैं, एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है तो उसमें फ्लावर कई सारे होते हैं, राइट। तो एक फ्लावर है, सपोज किसी प्लांट पे 4 फ्लावर है, 4 फ्लावर्स है, ठीक है। सपोज किसी प्लांट पे क्या है, 4 फ्लावर्स है, ठीक। सपोज मैं ऐसे ही आपको जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसे ड्रॉ कर दे रही हूँ, ये 4 फ्लावर्स है, ठीक है। एक ही प्लांट पे ये 4 फ्लावर है, ठीक है। नंबर 1 2 3 4। अब इसमें क्या है कि इसमें मेल, यानी कि इस पे क्या प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि इसमें प्रेजेंट है स्टेमिन। अब इसमें प्रेजेंट है कार्पल, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फिर इसमें हो सकता है प्रेजेंट हो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, यानी कि क्या, स्टेमिन, ठीक है। इसमें फिर हो सकता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि एक में किसी में स्टेमन प्रेजेंट है, किसी में कार्पल प्रेजेंट है। एक ही प्लांट पे कई सारे फ्लावर्स होते हैं तो किसी में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, किसी में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, ठीक है। किसी में कार्पल होगा, किसी में स्टेमन होगा। तो इसमें क्या होता है कि एक ही प्लांट पे जब जो है कि फ्लावर है ही, ठीक है, फ्लावर एक ही प्लांट पे है ही, तो उसमें से क्या होगा कि एक फ्लावर पे से, जैसे इस फ्लावर में स्टेमन है तो इसका पॉलन ग्रेन हो सकता है चला जाए इसके पास, इस दूसरे नंबर वाले फ्लावर के पास, या ये भी हो सकता है कि चौथे नंबर वाले फ्लावर के पास आ जाए, ठीक है। ये भी हो सकता है कि चौथे नंबर वाले फ्लावर के पास आ जाए, ठीक है। हो सकता है कि इसका जो इस फ्लावर का ये फ्लावर इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन है वो हो सकता है या तो इसको जाके फर्टिलाइज कर दे, इस फ्लावर के ओव्यूल्स को जाके फर्टिलाइज कर दे, या हो सकता है कि इस फ्लावर के ओव्यूल्स को जाके फर्टिलाइज कर दे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक ही प्लांट पे कई सारे फ्लावर्स होते हैं, एक में किसी में फीमेल होगा, किसी में मेल होगा, किसी में फीमेल होगा, किसी में मेल होगा। तो इस तरीके से उनमें क्या है कि एक ही प्लांट पे दोनों ही प्रेजेंट है लेकिन फ्लावर जो है वो अलग अलग है, उनके फ्लावर्स जो है अलग अलग है। तो इस तरीके से वो आपस में क्या कर लेते हैं, आराम से पॉलिनेशन हो जाता है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन याद रखिएगा बच्चों, फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब मेल और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होता है, जब वो मिलते हैं मेल और फीमेल गैमेट, तो उसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के अंदर एंटर कर जाता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट इज फ्लावर्स दैट कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक साथ प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको वो गुड़हल का फूल दिखाया था प्रीवियस वीडियो में, उसके स्ट्रक्चर दिखाया था, उस पे मेल ऑर्गन भी प्रेजेंट था, यानी कि उस पे स्टेमन भी प्रेजेंट था और उस पे क्या था, पिस्टिल भी प्रेजेंट थी, ठीक है। उस पे दोनों एक साथ पाए जा रहे थे, ठीक है। तो उसी फ्लावर में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो सकती है, विद इन दी सेम फ्लावर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि उस फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स है सिर्फ उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाए, वो उसी प्लांट के किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पे भी जा सकते हैं, उसी प्लांट के मतलब पॉलन ग्रेन्स, ओके। क्योंकि पॉलन ग्रेन्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं वाया एयर, विंड या इंसेक्ट्स के द्वारा या बर्ड्स के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से पॉलन ग्रेन्स है तो वो किसी भी फ्लावर में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि स्पीशीज सेम होनी चाहिए, यानी कि
उसी जाति का होना चाहिए, उस जाति से अलग नहीं होना चाहिए, नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको बच्चों। तो बाइसेक्सुअल में क्या होता है, बाइसेक्सुअल में दोनों एक ही पे होता है। ठीक है, बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की बात करें, बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करें बच्चों, तो क्या होगा, बोथ मेल एंड फीमेल reproductive organs present on the same flower, एक ही फूल में। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब प्रेजेंट होते हैं, यानी कि स्टेमेन और पिस्टल एक साथ प्रेजेंट होते हैं, तब उसको हम कहेंगे क्या, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। जैसे एग्जांपल में, ठीक है, हिबिस्कस, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में स्ट्रक्चर में, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, जस्ट इग्नोर इट, हिबिस्कस, ठीक, हिबिस्कस, रोज, ठीक है, और भी ऐसे कई सारे फ्लावर्स होते हैं जो कि बाइसेक्सुअल होते हैं, जैसे कि पी, ट्यूलिप, लिली, ठीक है, ट्यूलिप, लिली, ठीक है, ETC। तो इस तरीके से क्या है बच्चों कि ये है बाइसेक्सुअल, ये हो गए बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप थरली लर्न कर लीजिएगा, आपके एग्जाम्स में पूछ सकता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल बताइए या यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल बताइए या डिफाइन कीजिए विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए आप लर्न कर लीजिएगा एग्जाम्पल्स। ओके, और हिबिस्कस तो आप भूल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका मैंने स्ट्रक्चर आपको अच्छे से दिखाया था फर्स्ट वीडियो में, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर में डिफरेंस यही है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में एक फ्लावर में या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा। वही बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा, दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि पिस्टिल और स्टेमन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल यूनिसेक्सुअल फ्लावर के पपाया, गार्ड, वाटरमेलन, मलबेरी, etc. and examples of bisexual flower, hibiscus, rose, tulip, lily, pea, etc. Okay, now the next topic is complete and incomplete flower. अब एक complete और incomplete flower क्या होते हैं, complete यानी कि संपूर्ण और incomplete यानी कि असंपूर्ण। ठीक है, तो ये संपूर्ण और असंपूर्ण पुष्प क्या होते हैं, फूल क्या होते हैं, तो फ्लावर्स इन विच ऑल द फोर whorls is that is calyx, corolla, androecium and gynoecium are present are called complete flower। तो बच्चों कुछ ऐसे मतलब फ्लावर्स जरूरी नहीं है कि उसमें जो कि चारों पार्ट्स एग्जिस्ट ही करें। ठीक है, कभी कभी आप देखते होंगे कुछ फ्लावर्स में क्या होता है कि कुछ पार्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो वैसे फ्लावर्स जो कि जिनमें कि चारों पार्ट्स पूरी पर्टिकुलर हो, ठीक है, एंड्रोशियम भी हो, गाइनोशियम भी हो और कोरोला भी हो और कैलिक्स भी हो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया यूनिसेक्सुअल फ्लावर बताया, उसमें या तो एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा या तो गाइनोशियम प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या है, वो कंप्लीट फ्लावर नहीं है, दे आर नॉट कंप्लीट फ्लावर, सॉरी, हाँ, जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो है वो कंप्लीट फ्लावर नहीं है, क्योंकि उसमें या तो एंड्रोशियम प्रेजेंट है या तो गाइनोशियम प्रेजेंट है। ठीक है, और चारों जिसमें प्रेजेंट हो, जैसे कि गुड़हल का फूल हो गया, हिबिस्कस फ्लावर, जैसे चाइना रोज भी कहते हैं, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, उसमें चारों रूल्स प्रेजेंट थे, कैलिक्स भी था, कोरोला भी था, एंड्रोशियम भी था, गाइनोशियम भी था। ठीक है बच्चों, तो उसमें क्या था कि चारों रूल्स बिल्कुल कंप्लीट थे, कंप्लीट फॉर्म में थे, तो वो क्या थे, वो कंप्लीट फ्लावर कहलाते हैं। ठीक है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट है, उसमें कोई भी पार्ट्स मिसिंग नहीं है, लैक नहीं है, एब्सेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, इसलिए उसको कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। एग्जाम्पल हिबिस्कस, मस्टर्ड, रोज और भी कई सारे ऐसे फ्लावर्स हैं जो कि कंप्लीट होते हैं। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो है वो एक तरीके से कंप्लीट फ्लावर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स न भी आते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द बाइसेक्सुअल फ्लावर कंप्लीट फ्लावर की कैटेगरी में आते हैं। मोस्ट ऑफ द यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो आएंगे ही नहीं कंप्लीट फ्लावर की कैटेगरी में। ठीक है, वो इनकम्प्लीट ही रहेंगे हमेशा। ओके, नाउ देन नेक्स्ट इज
flowers that lack at least one or more rules are called incomplete flower. जैसे कोई ऐसे फ्लावर्स जिसमें एक या एक से अधिक रूल्स जो है वो एब्सेंट हो, उनकी कमी हो, मिसिंग हो, तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाते हैं। ठीक है, मिसिंग है तो ऑब्वियसली वो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट तो है नहीं, संपूर्ण नहीं है वो, इसलिए वो इनकम्प्लीट कहलाएंगे। जैसे फ्लावर्स ऑफ ग्रास, कॉर्न, ओक एंड मलबेरी, ये सब क्या है बच्चों, ये सब इनकम्प्लीट फ्लावर है। ठीक है, इनकम्प्लीट सारे यूनिस, इतना याद रखिएगा, सारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं वो इनकम्प्लीट फ्लावर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो आपको इससे भी याद रखने में आसानी होगी कि अगर आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर याद है कि क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं कि इनकम्प्लीट फ्लावर क्या है। ठीक है, अगर आपको याद है कि इनकम्प्लीट फ्लावर क्या है, तो आप एक तरीके से यूनिसेक्सुअल फ्लावर को भी रिकॉल करके उसकी भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। नाउ द नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ फ्लावर। फ्लावर के फंक्शंस क्या है, फ्लावर क्या करता है। ठीक है, सी देखिए, इस दुनिया में जो भी चीज पाई जाती है उसका कुछ ना कुछ पर्पस है, उसका कुछ ना कुछ काम है। ठीक है, बिना काम के कोई चीज नहीं पाई जाती है। ठीक है, हम इंसान, हम भी पैदा हुए हैं तो हमारा भी कुछ ना कुछ काम है, हम सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ऐसे ही प्लांट्स है, वो भी लिविंग, कोई भी चीज लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सबका अपना अपना एग्जिस्टेंस का एक पर्पस है बच्चों। तो वैसे ही फ्लावर के भी एग्जिस्टेंस का एक पर्पस है, वो भी कुछ करता है अपने पौधों के लिए, अपने प्लांट के लिए। तो आइए देखते हैं वो क्या करता है। ठीक है, सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन ही मेन फंक्शन है फ्लावर का। ठीक है, तो पहला फंक्शन, अगर वहीं हम फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस ऑफ फ्लावर, फंक्शंस ऑफ फ्लावर्स, तो बेसिकली सारे पौधों का पहला फंक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन करना। ठीक है, क्योंकि यही तो रिप्रोडक्टिव पार्ट है पूरे प्लांट का। ठीक है, इसी में मौजूद है एंड्रोशियम और गाइनोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो बिना फ्लावर के तो रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता बच्चों। ठीक है, तो इसका क्या काम होता है, मेन काम होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन एंड पिस्टिल जो है प्रेजेंट होते हैं फ्लावर के अंदर। पॉलिनेशन के बाद फ्रूट्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, फ्रूट में सीड्स होते हैं जो कि जर्मिनेट करते हैं नए प्लांट में आफ्टर गेटिंग फेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का काम होता है, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं स्टेमन और पिस्टिल फ्लावर के अंदर। पॉलिनेशन जब हो जाता है, यानी कि जब पॉलन ग्रेन का जब पॉलन ग्रेन पहुंच जाते हैं स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा से फिर होते हुए वो ओवरी में पहुंच के वहां पे ओव्यूल्स के अंदर एंटर करके वो जब फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज कर देते हैं बच्चों, तब क्या हो जाता है कि एक मतलब सीड का फ्रूट बनता है, उसके अंदर सीड्स बनते हैं और फिर वो सीड्स जर्मिनेट करते हैं एक नए प्लांट में। कब, जब भी फेवरेबल कंडीशंस, यानी कि देखिए हर प्लांट हमेशा तो ग्रो नहीं करती है, हर प्लांट का अपना अपना सीजन होता है ग्रो करने का। ठीक है, तो आप हर प्लांट अलग अलग सीजन में ग्रो करती है, तो जब भी उसको अपने सीजन के अकॉर्डिंग, मतलब जब भी उसके सीजन्स आते हैं, ठीक है, जो प्लांट के लिए जो भी कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन जरूरी है, जब वो वेदर, वो सीजन आता है, तो वो सीड जो है कि जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, इसलिए सीड्स वगैरह जो फार्मर्स डालते हैं या जो हम अपने घर पे भी प्लांटिंग करते हैं, तो सीड्स वगैरह डालते हैं। ठीक है, फ्रूट्स की, जैसे वाटर, आप देख लीजिए जितने भी फ्रूट्स होते हैं मोस्टली हर फ्रूट्स में सीड्स पाए जाते हैं। ठीक है, वाटरमेलन के सीड्स हो गए और मैंगो के सीड हो गए, तो सीड से ही तो एक न्यू प्लांट का ग्रोथ होता है। एक नए प्लांट को उगाने के लिए हम सब सीड्स ही तो बोते हैं। ठीक है, तो सीड्स फ्रूट से मिलते हैं। ठीक है, फ्रूट कैसे फॉर्म हुआ, जब फ्लावर में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई, तो फिर क्या होता है कि वही जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और उन्हीं सीड्स को हम यूज करते हैं न्यू प्लांट को ग्रो कराने के लिए। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट इज फ्लावर कंटेन अ स्वीट फ्लूइड कॉल्ड नेक्टर इनसाइड देम। फ्लावर के अंदर क्या होता है, एक मीठा सा तरल पदार्थ होता है, चिपचिपा सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, लिक्विड सेमी लिक्विड टाइप का एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, नेक्टर कहते हैं। ठीक है, नेक्टर कहते हैं। तो नेक्टर क्या होता है, इंसेक्ट्स का फूड होता है। ठीक है, इंसेक्ट्स जो भी जैसे बटरफ्लाई हो गई, हनी बी हो गई, और भी ऐसे कई सारे उल्टे वाले जो भी
इंसेक्ट्स हुए, उनका क्या होता है, ये नेक्टर उनका फूड होता है, ठीक है। तो जो हनी बी शहद कलेक्ट करती है तो वो फ्लावर से नेक्टर सक करती है और फिर वो हनी सिक्रीट करती है, ठीक है। तो नेक्टर जो है वो इंसेक्ट्स का, बर्ड्स का और बैट का, ठीक है, फूड है। There are some flowers which store food in them. कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जो अपने अंदर फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो अपने अंदर फूड को स्टोर करते हैं और वो जो है कि मॉडिफाई हो जाते हैं थोड़े बड़े फ्लावर्स में, थोड़ा बड़े हो जाते हैं वो, तो हम उनको एज अ फूड यूज करते हैं, हम उसे खाने की तरह यूज करते हैं। जैसे कि ब्रोकली आप सबने देखी होगी, ग्रीन सा होता है गोभी के जैसा, ठीक है। कॉलीफ्लावर भी आप जानते हैं, गोभी, सैफरन, केसर का जो होता है, केसर हम एज अ फूड यूज करते हैं, खाने में डालते हैं फॉर कलरिंग एंड फ्लेवर, ओके। क्लव्स यानी कि लौंग, ठीक है, लौंग आप देखते हैं वो फ्लावर होता है, लौंग क्या है, फ्लावर, क्लव क्या है, फ्लावर है, ठीक है। तो उसे भी हम स्पाइस, एज अ स्पाइस यूज करते हैं। और भी ऐसे कई सारे स्पाइसेस है जिससे एज अ फूड यूज किया जाता है, जो कि फ्लावर होते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो दो फंक्शंस हो गए, एक तो हो गया रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या है कि फ्लावर्स में जो है कि नेक्टर प्रेजेंट होता है, और नेक्टर जो होता है वो कई सारे इंसेक्ट्स, बर्ड्स और बैट का फूड होता है। तो इस तरीके से फ्लावर क्या हो रहा है कि वो एक तरीके से फूड भी प्रोवाइड कर रहा है इंसेक्ट्स को, बैट्स को और बर्ड्स को, ठीक है। और कुछ फ्लावर्स क्या कर लेते हैं, अपने अंदर फूड को स्टोर भी कर लेते हैं और उन्हें हम एज अ फूड यूज करते हैं। डेट इज एग्जाम्पल्स कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, सैफरन, क्लव एंड मेनी अदर स्पाइसेस। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हमने कवर किया यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर एंड फंक्शन ऑफ फ्लावर, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में, जानेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है और ये कैसे होता है, ये कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। ये सब कुछ हम जानेंगे। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon for getting the updates of the new videos. Till then, have a good day. Bye bye.